میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی میری زندگی میں کوئی ایسا دن بھی آ سکتا ہے۔ میں سر پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے گھر پر جو قیامت گزر گئی تھی، اس کے بعد تو میں کسی کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ میری بن بیائی بیٹی ماں بننے والی تھی۔ میرے لیے شرمندگی سے ڈوب مرنے کا مقام تھا، مگر نہیں، میں زندہ تھی۔ میں نے غصے سے بھری نظر اپنے سامنے بیٹھی اپنی گونگی بیٹی کی طرف ڈالی تھی۔ ارے گونگی، کچھ تو بتا، یہ سب کیا ہے؟ منحوس ماری، میں تجھے گھر میں اس لیے رکھتی تھی کیا؟ بتا مجھے، یہ سب کس نے کیا ہے؟ میں نے گونگی کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا تھا، مگر گونگی سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ مجھے اپنی عزت کے دو کوڑی کا ہو جانے کا بڑا ڈر تھا۔ میں نے یہ عزت کب سے سنبھالے رکھی تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد بھی کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا بھی، مگر اب مجھے لگ رہا تھا کہ یہ عزت زیادہ دیر میرے پاس نہیں رہے گی، کیونکہ میں جس بیٹی کو زمانے کی باتوں کے ڈر سے گھر میں چھپا کر رکھتی تھی، وہ تو گھر میں رہتے ہوئے ہی میری بدنامی کا باعث بن گئی تھی۔ میں بیٹھی اپنی بیٹی کو ہی دیکھے جا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی، اور اسی وقت میری دوسری بیٹی گھر میں داخل ہوئی۔ میں نے جلدی سے گونگی کو بستر کے اندر کر دیا اور کہا کہ گونگی، جب تک میں نہ کہوں نہ اٹھنا۔ گونگی نے فقط سر ہلایا تھا۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی تھی، جہاں میری دوسری بیٹی انابیہ اپنی نند کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے نظر بھر انابیہ کو دیکھا تھا۔ انابیہ بھی گونگی کی طرح بے حد حسین تھی، لیکن اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری گونگی بیٹی، جس کا نام ابیہا تھا، وہ اپنے عیب کی وجہ سے 25 سال کی ہونے کے باوجود میرے در پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ انابیہ کی شادی 19 سال کی عمر میں ہی ہو گئی تھی۔ میں نے دونوں سے گلے لگتے دونوں کا استقبال کیا تھا۔ میں نے انابیہ سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، تو وہ اپنی نند کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی کہ اماں، جو آپ نے میری نند کے دیور سے گونگی باجی کی بات چلائی تھی نا، ان کی ساس نے انکار کر دیا ہے۔ کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا صرف ذرا سا لنگڑا کر چلتا ہے، میں اس کو گونگی لڑکی کے ساتھ بیاہ کر اس پر ظلم نہیں کر سکتی۔ میں دل مسور کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انابیہ کی نند چلی گئی تھی، جبکہ انابیہ کو میں نے روک لیا تھا۔ اس کی نند کے جاتے ہی میں انابیہ کے گلے لگتی زاروں قطار رو دی تھی۔ میں نے انابیہ سے کہا کہ انابیہ پلیز، تم کسی بھی شادی شدہ بچوں والے یا کسی بھی لولے لنگڑے کا رشتہ لے آؤ، میں اب جلد سے جلد اسے رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ انابیہ میری طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے؟ اسے کہیں نہ کہیں شک ہو گیا تھا۔ تب میں نے اسے ساری بات بتا دی تھی، جسے سن کر میری طرح وہ بھی سکتے میں چلی گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم جا کر اس سے پوچھو، شاید وہ تمہیں کچھ بتا دے۔ انابیہ میرے کہنے پر اس سے پوچھنے گئی تھی، مگر ابیہا نے اسے بھی کچھ نہیں بتایا۔ وہ بھی مایوس لوٹ آئی تھی۔ انابیہ مجھے کہنے لگی کہ گھر میں آنے جانے والے پر نظر رکھیں، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ مجرم کون ہے، مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ میں اس بدنامی کو جلد سے جلد اپنے سے دور کر دینا چاہتی تھی، جو میری ساری زندگی کی بنائی گئی عزت پر کالا اور بدنما دھبا بن کر لگنے والی تھی۔ میرا نام سریا ہے۔ میرا تعلق ایک پوش خاندان سے تھا۔ ہم لوگ اچھے طبقے کے تھے۔ ابا گورنمنٹ ملازم تھے، البتہ اماں سادہ سی عورت تھیں۔ ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ ماں باپ نے ہمیں بڑے نازوں سے پالا تھا۔ ہم ایک خوشی سے بھرپور اور مطمئن زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں 16 برس کی تھی جب ایک روز اماں اور ابا دونوں احتجاجی مظاہروں کی زد میں آ کر مارے گئے۔ وہ دن ہمارے لیے قیامت کا دن ثابت ہوا تھا۔ اس وقت بھابھی نے ہی ہم دونوں بہن بھائی کو سنبھالا تھا۔ بھائی چونکہ مجھ سے 6 سال بڑے تھے، اس لیے اماں ابا اپنی زندگی میں ہی ان کی شادی کے فرض سے سبکدوش ہو گئے تھے۔ سال بھر ہی ہوا تھا بھابھی کو ہمارے گھر آئے۔ بھائی کی شادی کر کے ابا نے اسے گھر کے ساتھ دوسرے 3 کمروں والے مکان میں شفٹ کر دیا تھا۔ دونوں مکان ایک جیسے اور ایک ہی طرز پر بنائے گئے تھے۔ بیچ میں بس ایک 6 فٹ کی دیوار تھی، جو باڑے کے طور پر لگائی گئی تھی۔ اماں ابا کی موت کے بعد بھائی اور بھابھی مجھے اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ اماں ابا کے مکان کو فی الحال بند کر دیا گیا تھا۔ جو ہی میں 18 سال کی ہوئی تو بھابھی نے میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا اچھا ہے، مگر اس کے لیے کسی معقول رشتے کا ملنا بھی ضروری تھا۔ یوں ہی ایک روز ہمارے گھر کچھ مہمان آئے۔ وہ کافی امیر کبیر تھے۔ ان کے جانے کے بعد بھابھی نے مجھے بتایا کہ وہ میرے رشتے کے لیے آئے تھے تو وہ غیر مگر اونچے خاندان سے تھے۔
इसलिए भाभी रजामंद हो गईं कि मेरी जिंदगी संवर जाएगी, मैं वहाँ खुश रहूंगी। लेकिन मुझे कुछ खटक रहा था। भले ही हम हैसियत में इतने कम ना थे, लेकिन फिर भी इतने अमीर खानदान का रिश्ता मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने भाभी को मना करना चाहा था, मगर भाभी ने मुझे ही बेवकूफ समझा। खैर, भाई को भाभी ने राजी कर लिया था। मेरी शादी हसीब से हो गई। शादी के बाद जल्द ही मुझे इल्म हो गया था कि इतने बड़े खानदान का हमारे घर आने के पीछे क्या वजह थी। दरअसल मेरा शोहर हसीब एक नशेई इंसान था। उसके घर वाले उसका बहुत इलाज करवा चुके थे, मगर वो अपनी इस आदत को ना छोड़ सका। वो हर वक्त नशे में धुत रहता था। मुझे जब सच्चाई का इल्म हुआ तो मैं वापस भाई के घर आ गई और उन्हें सारी सच्चाई सुनाई थी। भाई और भाभी ने मेरा बहुत साथ दिया था। मैंने हसीब से खुला ले ली थी। मैं गरीब शख्स के साथ तो जरूर रह सकती थी, मगर एक नशेई इंसान के साथ हरगिज नहीं। खुला हो जाने के 1 साल बाद भाई ने दोबारा मेरी शादी करवा दी थी। साजिद मेरे अब्बा के दूर पार के भतीजे थे। मेरी सास अगरचा अच्छी ना थी, मगर वो कहते हैं ना कि अगर हम सफर अच्छा हो तो इंसान बाकी सबको बर्दाश्त कर लेता है। मैं भी साजिद की मोहब्बत और तवज्जो पाकर सब कुछ भूल जाती थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया था। शादी के 1 साल बाद मेरे घर बेटी की पैदाइश हुई। मैंने बड़ी चाहों से उसका नाम अभिया रखा था। मेरी सास को बेटा चाहिए था। उसने बेटी की पैदाइश पर नाक भवें चढ़ाई थी, मगर साजिद के सामने कुछ ना कहा। मगर जब हमें खबर हुई कि हमारी बेटी गूंगी है, तो बस फिर क्या था। मेरी सास को तो जैसे मौका मिल गया था। मेरी सास सुबह शाम ताने देने लगी कि एक तो बेटी पैदा की, दूसरी वो भी गूंगी। मेरा शोहर अपनी माँ को समझाता रहता था, मगर खैर माँ से लड़ तो नहीं सकता था। 4 साल बाद मेरे घर दूसरी बेटी पैदा हुई। अल्लाह का शुक्र था कि उसमें किसी किस्म की माजूरी ना थी। अनाबिया की पैदाइश के 2 साल बाद ही एक रोज साजिद की मौत हो गई। उसकी मौत अचानक और गैर यकीनी थी। रात में वो बिल्कुल ठीक सोया था और फिर उसी नींद में ही वो अपने अब्दी सफर पर रवाना हो गया। मैं तन्हा रह गई थी। मेरी सास ने मुझ पर जिंदगी तंग कर दी थी। मैंने वहां रहने की बहुत कोशिश की, मगर मैं भी इंसान थी। आखिर कब तक बर्दाश्त करती। यूं ही एक रोज अपनी बेटियों को लेकर वापस भाई के घर आ गई थी। भाई अच्छी नौकरी करते थे। वो मेरा और मेरे बच्चों का खर्चा उठाने लगे। भाभी की अपनी कोई औलाद ना थी। वो मुझे कहने लगी कि मैं अनाबिया को उन्हें दे दूं। मुझे क्या एतराज होना था, एक ही तो घर था। भाई ने बीच की दीवार में ही एक तरफ दरवाजा लगा दिया था। अब हमें एक दूसरे के घर आने जाने के लिए मेन दरवाजे की बजाय उसी दरवाजे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। भाभी ने अनाबिया को अपनी बेटी बना लिया था, मगर अनाबिया समझदार हो चुकी थी। वो जानती थी कि वो मेरी बेटी है, लेकिन मेरे समझाने पर उसने भाभी को भी अम्मी और भाई को बाबा कहना शुरू कर दिया था। मुझे अलबत्ता वो अम्मा ही कहती थी। मैं अक्सर आकर भाई और भाभी की तरफ बैठी रहती, या फिर फारिग रहने से तंग होती तो अपनी दोस्तों की तरफ चली जाया करती थी, जो उसी मोहल्ले में मुकीम थी और उनसे मेरा बचपन का साथ था। उस रोज भी मैं भाई की तरफ बैठी हुई थी, जब भाभी मुझे कहने लगी कि अबिया का कोई इलाज वगैरह करवाओ, हो सकता है वो ठीक हो जाए। मगर मैंने ध्यान ना दिया। मैंने कहा कि भाभी, वो पैदाइशी ऐसी है, इलाज से कहाँ ठीक होगी। तो भाभी कहने लगी कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। मैंने हामी भर ली थी। भाई ही मुझे अस्पताल लेकर गए थे और वहीं चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया था कि अबिया के ठीक होने के चांस बहुत कम हैं। ऑपरेशन से हो सकता है वो ठीक हो जाए, मगर जो ऑपरेशन वो बता रहे थे वो हमारे बस से बाहर था। हम चुपचाप घर आ गए थे। भाभी अबिया को लेकर बहुत दुखी होती और कहती कि सुरैया, मुझे तुम्हारी अबिया की बहुत परेशानी है। अगर मेरी कोई औलाद होती, मेरा कोई बेटा होता तो चलो बात और थी, मगर यूं अबिया की अगली जिंदगी बेहद मुश्किल है। लड़की जात है। भाभी की इस बात ने मुझे भी परेशान कर दिया था। ठीक ही तो कह रही थी। वो जो बात मुझे समझाना चाह रही थी, मैं समझ गई थी और मुझे खुद पर हैरत थी कि ये बात मेरे जहन में क्यों ना आई थी। अभी यह जवानी की उम्र को पहुंच चुकी थी। उसके साथ ही उसे लेकर मेरी फिक्रें बढ़ती गई थीं। फिर जब शादी की उम्र हुई तो उसकी तस्वीर देखकर हमारे घर बहुत से रिश्ते आते, क्योंकि अबिया शक्लो सूरत और नैन नकुश में बहुत हसीन थी। यही वजह थी कि जो भी उसकी तस्वीर देखता वो हमारे घर उसका रिश्ता लेकर आ जाते। मगर जब उन्हें इल्म होता कि अबिया बोल नहीं सकती तो वो इनकार करके चले जाते। मेरी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। एक तरफ अबिया के बिल्कुल रिश्ते नहीं आ रहे थे, दूसरी तरफ अनाबिया के लिए हर दूसरे रोज रिश्ता आया होता था।
मैं अब हर वक्त अबिया को कोसती रहती कि तुझे मेरे ही घर में पैदा होना था, अब कहाँ से ढूंढूंगी तुम्हारे लिए लड़का, और कौन करेगा तुझसे शादी। अबिया मेरी तल्ख बातें सुनती सर झुका जाती थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी क्योंकि मैंने उसे स्कूल में डाला ही नहीं था, ये सोचकर कि गूंगी लड़की क्या पढ़ लेगी। हालांकि भाई और भाभी ने बहुत कहा कि सुरैया तुम बहुत गलत कर रही हो, इसकी आवाज नहीं है ना सही, तुम इससे उसका बुनियादी हक तो ना छीनो। मगर उस वक्त मैं अपनी औलाद से सख्त मुंतफिर हुई थी। मैं जब भी अनाबिया को बोलते चालते और पढ़ते हुए देखती तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि काश गूंगी भी बोल सकती, मगर ऐसा नहीं हो सका था। मुझे इस बात का बहुत रंज होता था और मैं अपना सारा गुस्सा अबिया पर ही निकालती थी, जैसे कि गूंगी होने में सारा कसूर उसका ही हो। वो बेचारी चुपचाप मेरी मार खाती रहती, फिर वो बहुत सहमी सहमी रहने लगी थी। पहले तो वो फिर मेरे पास आकर बैठ जाती और इशारों किनारों में बात करने की कोशिश करती, मगर जब एक दो मर्तबा मैंने उसके यूं इशारे करने पर उसके लिए हिकारत का इजहार किया तो वो बेचारी सहम गई और उसके बाद मेरे पास उठना बैठना छोड़ दिया। वो मुझसे खौफजदा रहने लगी थी। मैंने भी शुक्र अदा किया था कि उससे जान छूट गई थी। पहले तो वो मेरे पीछे पीछे ही रहती थी, मगर अब वो ज्यादा कमरे में ही रहने लगी थी। सुरैया तुम अबिया को साथ क्यों नहीं लाती? एक रोज मैं भाभी के घर बैठी हुई थी जब भाभी ने पूछा। मैंने भाभी से कहा कि भाभी उसे क्या साथ लाऊं, मैं इधर आती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो चलो बंदा दो घड़ी साथ बैठकर बातें करता है, कुछ अपनी कहता है कुछ दूसरे की सुनता है। ऐसे में अबिया बेचारी हमारे बीच क्या करेगी? उसके इशारे तो अब मुझे भी समझ नहीं आते, और कोई क्या समझेगा। भाभी ने मुझे कहा कि सुरैया बुरी बात है, वो तुम्हारी बेटी है, भले ही वो बोल नहीं सकती मगर सुन तो सकती है ना। उसे यूं घर में अकेला ना छोड़कर आया करो, जवान जहान बच्ची है, यहाँ आया करो तो यहाँ लेकर आया करो, नहीं तो कहीं भी जाओ उसे साथ लेकर जाया करो, वरना हमारी तरफ छोड़ दिया करो। मैंने सर इस बात में हिला दिया था और फिर दूसरी बातों में मशगूल हो गई थी। भाभी की बात घर पहुंचने तक मेरे जहन से निकल चुकी थी। घर आई तो देखा अबिया खाना बना रही थी। इन कामों में वो तेज थी। यूट्यूब और टीवी पर देख देख कर वो ढेरों खाने बना लेती थी। उसके हाथ में बड़ा जायका था। सिर्फ खाना पकाना ही नहीं बल्कि वो घर का हर एक काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती थी, चाहे वो बर्तन मांजना होता या फिर सफाई करना। बर्तन धोती तो बर्तनों में मुंह नजर आता। इसी तरह जब झाड़ू लगाने के बाद फर्श लगाती तो फर्श भी चमक जाते थे, फर्श में मुंह दिखाई देता था। कभी कभी मैं सोचती कि वो जिस घर जाएगी उसको जन्नत बना देगी, मगर अब उसके लिए रिश्ते नहीं आते थे। देख मुझे बेहद परेशानी हो रही थी। कोई भी उसके गूंगेपन की वजह से उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था, जबकि अनाबिया के लिए रिश्तों की लाइनें लगी हुई थीं। आखिर को एक माकूल और मुनासिब रिश्ते को अनाबिया के लिए मुकर्रर कर दिया गया। मुझे एक तरह खुशी भी थी अनाबिया की शादी की, बल्कि मैं उसके लिए बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ मैं अबिया को लेकर गुस्सा भी थी। अनाबिया की मंगनी बहुत धूमधाम से हुई थी। मैं तैयार हो रही थी जब अबिया अपने सूट लेकर आई और इशारे में मुझसे पूछने लगी कि कौन सा सूट पहनूं, तो मैंने उसे झड़क दिया और कहा कि कोई भी सूट पहनने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम कहीं भी नहीं जा रही। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो इशारे में कहने लगी कि मेरी बहन की मंगनी है, मुझे जाना है। ना जाने क्यों उस वक्त मुझे अबिया का अंदाज जिद्दी सा लगा था। मुझे एकदम गुस्सा आ गया। मैंने अबिया के मुंह पर थप्पड़ मारा और फिर उसे धक्का देकर बेड पर फेंक दिया और कहा कि मैंने कहा है ना कि तुम कहीं नहीं जा रही। तुम्हें एक मर्तबा की बात समझ क्यों नहीं आती? चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। तुम अगर मुझे मेरे मना करने के बावजूद वहां दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने उसे सख्त सख्त सुनाई थी। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई थी। मुझे एक पल को उसकी रोती हुई आंखें देखकर मलाल हुआ था, मगर फिर मैंने सर झटक दिया और उसके नीचे गिरे हुए सूट उठाकर बेदिली से सोफे पर फेंक दिए थे। इतने में भाभी आ गईं और कहने लगी कि भाई सुरैया और कितनी देर है, मेहमान आ गए हैं, तुमने कब आना है? मैंने भाभी से कहा कि भाभी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बस आ ही रही थी कि आप आ गईं। भाभी मुझसे अबिया के बारे में पूछने लगी कि अबिया कहाँ है, वो नहीं जाएगी क्या? तो मैंने कहा कि नहीं भाभी, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, उसे दवा दी है, शायद वो सो गई है, और वैसे भी मैं खुद भी उसे वहां लेकर नहीं जाना चाहती। ये सब देखकर उसका दिल दुखेगा, मैंने थप्पड़ वाली बात गोल कर दी थी।
भाभी ने अबिया को देखना चाहा। जब मैंने कहा कि भाभी, देर हो रही है, बाद में आकर देख लीजिएगा, अभी वैसे भी वो सो गई होगी। इतना कहकर मैं भाभी के साथ उनके घर आ गई थी। बहुत धूमधाम से मंगनी की गई थी। सारे काम निपटा कर मैं घर आई, अबिया के कमरे में गई तो वो बेड के पास बैठी, घुटनों में सर दिए हुए थी। उसका बदन होले होले कपकपा रहा था, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो रो रही थी। उसको रोता देखकर मेरा मूड बिगड़ा था। मैंने उसे कहा कि तुम यहाँ बैठी रोती रहो, वहाँ अनाबिया की इतनी धूमधाम से मंगनी हो गई है और 2 महीने बाद शादी भी है। तुमसे पूरे 4 साल छोटी है वो। अगर तुम ऐसी ना होती तो आज तुम भी आरामो सुकून से खुशी खुशी अपना घर बसा रही होती, मगर नहीं, तुम्हें तो बस माँ को परेशान ही करना है। मैं उसी को ही बातें सुना रही थी, जैसे कि गूंगा होना उसकी गलती थी। इस दौरान मैं ये बात भूल गई थी कि वो अपनी मर्जी से ऐसी नहीं थी। इस चीज पर उसका कोई इख्तियार नहीं था, ना ही ये चीज उसके बस में थी। मगर मेरी अकल पर जो पर्दा पड़ गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। 2 महीने बाद अनाबिया की धूमधाम से शादी भी हो गई थी। वो अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, सब उसका बहुत ख्याल रखते थे। उसको खुश और मुतमईन देखकर मैं भी बहुत खुश थी। अब मेरी कोशिश थी कि अब इसी तरह अबिया भी अपने घर की हो जाए तो मैं उसकी जिम्मेदारी से भी आजाद हो जाऊंगी। सारा मसला ही तो यही था। उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी और उसका कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था। ये देख देख कर मैं ज़हनी मरीजा बनती जा रही थी और मेरा सारा गुस्सा फिर अबिया पर निकलता था। मेरे इस रवैये से अबिया मुझसे बेहद दूर हो चुकी थी। वो अक्सर अब भाभी के घर चली जाती थी। अनाबिया के जाने के बाद भाभी भी अकेली हो गई थी। उन्हें हमेशा से बातें करने की आदत थी। पहले वो अनाबिया के साथ लगी रहती थी, भले ही अनाबिया को उनकी बातों में कोई दिलचस्पी होती या नहीं। अब अनाबिया के जाने के बाद वो अबिया को बुला लेती और उसको साथ बिठाकर उससे न जाने क्या क्या बातें करती रहती थी। कभी कभी मुझे हैरत होती थी कि भाभी उससे इतनी बातें कर कैसे लेती हैं, ये जानते हुए भी कि वो उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकती है। मैं जब भी पूछती तो हमेशा यही कह देती कि सुरैया, वो मुझे सुन तो सकती है ना, और मेरे लिए यही बहुत है कि इस घर में मुझे सुनने के लिए दीवारों के अलावा भी कोई है, वरना भाई मैं तो तंग आ जाती हूँ खाली खाली घर से। भाभी की अपनी ही अजीब मंतिक थी। उस रोज भी मैं पड़ोस में गई थी। पड़ोसन खाला की तबीयत कुछ खराब थी, सो मैं अयादत के बहाने चली गई। वापिस आई तो अभिया घर में नहीं थी। उसे आवाजें देते देते मैं भाभी के घर की तरफ आ गई। भाभी के कमरे के बाहर पहुंचते मुझे अंदर से हंसने की आवाजें सुनाई दी थीं। मैं हैरान होते अंदर गई कि भाभी के साथ कौन हंस रहा है। देखा तो भाभी और अबिया बेड पर बैठी हुई थी, जबकि सामने सोफे पर एक 25-26 साला कुछ शक्ल नौजवान बैठा हुआ था, जिसकी शक्ल भाभी से मेल खाती थी। उसने मुझे आते देख सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब देते नासमझी से भाभी की तरफ देखा तो भाभी कहने लगी, सुरैया, ये मेरा भाई अकबर है। मैंने हैरत से अकबर और भाभी की तरफ देखा। वो दोनों बहन भाई कम और माँ और बेटा ज्यादा लग रहे थे। भाभी की उम्र 48 साल थी। मेरे हैरान होने पर भाभी ने कहा कि सुरैया, हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा भाई ही है। दरअसल मेरे माँ बाप की आखिरी उम्र की गलती थी। इतना कहकर भाभी जोरदार कहकर लगाकर हंस पड़ी, जबकि अकबर ने सर झुका लिया। मेरा मूड भी फ्रेश हो गया था। मैं जाकर भाभी के पास बैठ गई और उन्हें कहा कि फिर तो आपको इसका नाम अकबर की बजाय असगर रखना चाहिए था। मेरा लहजा शरारती था, जिसे महसूस करते भाभी एक मर्तबा फिर से हंस पड़ी थी, और इस मर्तबा उनकी हंसी की आवाज में अकबर की हंसी भी शामिल हो गई थी। मैंने अबिया की तरफ देखा, वो भी खुश हो रही थी, मगर मुझे देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया था। थोड़े दिनों बाद अनाबिया घर आई तो मैंने उसे कहा कि अपने ससुराल में कहीं पे अबिया की बात चलाए, तो उसने हामी भर ली और कहा कि उसकी नंद का देवर है जो लंगड़ा कर चलता है, पैदाइशी ऐसा है। वहीं बात करती हूँ, शायद कहीं बात बन जाए। मेरे दिल में उम्मीद जा गई थी कि वो अपने लंगड़े बेटे के लिए मेरी गूंगी बेटी को कबूल कर ही लेंगे। कुछ ही दिन गुजरे थे, भाभी सौदा सल्फ लेने मार्केट गई हुई थी। उनकी कॉल आई और कहा कि मैं अकबर को भेज रही हूँ, उसके साथ अबिया को स्टोर पर भेज दो। उन्होंने कुछ नई डिशेस बनानी थी, मगर उन्हें जो चीजें लानी थी वो भूल गई थी। तभी वो अबिया को बुला रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा कि अकबर के साथ साथ भाभी भी वापस आ गई थी। मेरे पूछने पर कहने लगी कि भाई, मेरी टांगे तो बिल्कुल जवाब दे गई हैं।
मुझ से मजीद खड़ा नहीं रहा जा रहा था। तुम ऐसा करो, अबिया को बुलाओ, वो खुद अकबर के साथ जाकर ले आएगी। अबिया अकबर के साथ चली गई थी और उनकी वापसी 2 घंटे बाद हुई थी, क्योंकि भाभी ने घर का बाकी सामान भी ना खरीदा था। सब कुछ अकबर और अबिया ही खरीद कर लाए थे। दिन गुजरते जा रहे थे। अनाबिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। वैसे भी अब उसके घर भी खुशखबरी मुतवक्के थी। उस बेचारी के अपने भी सौ काम थे। मैंने सोचा खुद जाकर अनाबिया से मिल आऊं। वैसे भी 1.5 महीने से ज्यादा हो गया था उससे मिले हुए। अबिया को 2 दिन से बुखार था, वो कुछ सुस्त सी थी। मैंने खुद ही शाम के लिए दाल चढ़ा दी कि चलो अगर आने में देर हो गई तो पक जाएगी। मैं अबिया को आवाजें देने लगी कि आकर देख ले और फिर प्रेशर वगैरह का भी ध्यान रख ले। मैंने 2-3 आवाजें दी मगर वो बाहर नहीं आई। मुझे परेशानी हुई थी क्योंकि अमूमन मुझे कभी दूसरी मर्तबा आवाज देने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो मेरी पहली ही आवाज पर हाजिर हो जाती थी। मैं आंच धीमी करते उसके कमरे में गई ताकि देख सकूं कि कहीं उसकी सेहत तो ज्यादा खराब नहीं हो गई। मैं उसे कल से कई मर्तबा डॉक्टर के पास जाने का कह चुकी थी मगर वो हर मर्तबा इनकार कर रही थी। भाभी ने भी उसे डॉक्टर के पास जाने का कहा मगर उसने फिर भी इनकार कर दिया था। कमरे में गई तो कमरा खाली था, अलबत्ता वॉशरूम का दरवाजा खुला था और पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं यूं ही आगे गई, सामने का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मैंने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए थे और बेयकीनी से सामने का मंजर देखने लगी थी, जहां मेरी बेटी वाश बेसन पर झुकी हुई उल्टियां करते हुए निढाल हो रही थी। मेरी आमद से बेखबर उसने नल बंद किया और मुंह पोंछते हुए बाहर आई थी। मुझे खड़ा देख वो मेरी ही तरफ आई और बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरे शक की कोई गुंजाइश बाकी ना रही थी। कोई मेरी बेटी की इज्जत से खेल चुका था। मेरी बेटी होश में आई तो मैं उससे पूछने लगी कि ये सब किसने किया है तुम्हारे साथ, मगर उसने कुछ नहीं बताया और रोने लगी थी। मैंने चारों तरफ जहन दौड़ाया था मगर कोई भी ऐसा नहीं था कि जिस पर मेरा शक जाता। बेटी को रोते देख मेरा कलेजा फटने वाला हो जाता था। एक एक करके मेरी सारी कोताहियां मेरे सामने आ रही थीं। मुझे भाभी की बातें भी याद आ रही थी कि इसको अकेला मत छोड़ा करो, जहाँ जाया करो इसे साथ ले जाया करो, मगर मैं उनकी किसी बात को सीरियस नहीं लेती थी। आज उसका नतीजा मेरे सामने था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं अपनी ही बेटी से इस कदर बेखबर कैसे रह सकती हूँ। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि कब कौन आया और कब मेरी इज्जत के साथ खेलकर चला गया। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। न जाने जब भाई और भाभी को मालूम होगा तो वो क्या कहेंगे और दुनिया वाले तो मेरा जीना ही हराम कर देंगे। मैं छुपते छुपाते बेटी को अस्पताल लेकर गई। 2 महीने का हमल हो चुका था। मेरी रातों की नींदें और भूख प्यास उड़ गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बेटी के मुजरिम को कैसे तलाश करूं। मैंने कहीं आना जाना छोड़ दिया था। हर वक्त बेटी के साथ रहने लगी थी कि शायद वो मुझे कुछ बता दे। मेरी नमाजें लंबी होने लगी थीं। मैं देर तक मुसल्ले पर बैठी रहती थी, तहज्जुद पढ़ने लगी और रो रो कर दुआ करती कि मुझे मेरी बेटी का मुजरिम मिल जाए, क्योंकि जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे मेरी परेशानी भी ज्यादा हो रही थी। बदनामी का डर मेरे सीने में कुंडली मारे बैठ गया था। उस रोज जब अनाबिया आई तो मैं थोड़ा खुश हुई कि उसकी नंद के देवर के लिए अभिया का रिश्ता कबूल कर लिया होगा। चलो उसको उसके साथ ब्याह कर रुखसत कर दूंगी, जल्दी बदनामी सिरे से टल जाएगी। मगर अनाबिया ने भी बुरी खबर सुनाई थी। उस लंगड़ाते हुए लड़के की माँ ने अपने लंगड़े बेटे के लिए कोई हूर परी ढूंढ रही थी। मैंने अनाबिया से कहा कि उसने मेरी बेटी को ठुकराकर अच्छा नहीं किया। देखना वो सारी उम्र कवारा ही रहेगा और उसे कोई भी रिश्ता नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनकर अनाबिया कहने लगी, अम्मा क्या कर रही हैं? यूं बद्दुआएं तो ना दें किसी को। आप बस दुआ करें कि अल्लाह उसके हक में भी बेहतर करे और बाजी के हक में भी। तो मैंने कहा कि बाजी के हक में कुछ बेहतर नहीं हो सकता। तुम उसके लिए किसी भी लूले लंगड़े या अंधे बहरे का रिश्ता ले आओ। मैं उससे कुछ नहीं छुपा सकी थी। मेरे पूछने पर वो अभिया से पूछने भी गई मगर अभिया ने कुछ नहीं बताया। वो मायूस होकर बाहर निकल आई थी। अम्मा ये सब कैसे हो गया? आपको बाजी का ध्यान रखना चाहिए था। मैंने सर झुका लिया था। मेरी गलती थी। मेरे बस में होता तो वक्त की सुइयों को पीछे ले जाती, मगर अफसोस कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अनाबिया 2 दिन रही थी और मुझे तसल्लियां देते हुए अपने ससुराल लौट गई थी। वो जाते हुए मुझे कहकर गई थी कि मैं भाभी को सब कुछ बता दूं। उनसे छुपाना ठीक नहीं है। उनको बताऊं तो हो सकता है कि वो कोई हल ढूंढ लेंगी।
मगर मैं ना डर के मारे किसी को कुछ नहीं बता रही थी। लेकिन ऐसी बातें भला कहाँ छुपती हैं। हम माँ बेटी पूरा हफ्ता भाभी के घर नहीं गई तो भाभी खुद हमारे घर आ गई थी। मैं तख्तपोश पर बैठी हुई थी। मुझे देखकर वो कहने लगी कि सुरैया, क्या बात है, मुझसे कोई गलती या कोताही हो गई है जो तुमने और अबिया ने पूरा हफ्ता हो गया है मेरे घर में कदम नहीं रखा। मैं भाभी के सामने शर्मिंदा सी हो गई थी। मैंने कहा कि भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। तो भाभी कहने लगी कि मेरे घर न आने की वजह क्या समझूं। मैंने कहा कि भाभी, वो कुछ मसरूफियात ही ऐसी हैं। तो भाभी कहने लगी कि सुरैया, बहाने तो ना बनाओ, तुम्हारा यहाँ कौन सा टब्बर है जो तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, और ये अबिया कहाँ है, पहले तो मैं जरा उसकी क्लास ले लूं। कहते साथ ही भाभी अबिया को आवाजें देने लगी। मैंने कहा कि भाभी, अबिया की तबीयत ठीक नहीं है। तो भाभी पूछने लगी कि कब से है। तो मैंने कहा कि पिछले हफ्ते से। तो भाभी नाराजगी से मुझे कहने लगी कि सुरैया, तुम अबिया के मामले में बहुत लापरवाह हो, तुम उठो, उसे मैं अभी अस्पताल लेकर जाती हूँ। भाभी एकदम से उठ खड़ी हुई। मैंने मरी मरी आवाज में कहा कि मैं इसे अस्पताल लेकर गई थी। ना चाहते हुए भी मेरा लहजा भीग गया था। भाभी ने मेरा चेहरा पकड़ते अपनी तरफ मोड़ा और कहने लगी कि सुरैया, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो, कोई बात है तो बताओ। मेरी बर्दाश्त यहीं तक थी। मेरा जब्त जवाब दे गया था। एक हफ्ते से जो मेरे दिल में गुबार था वो सारा आंसू की सूरत में बह निकला था। मैं भाभी के गले लगती फूट फूट कर रो दी थी। भाभी कहने लगी कि सुरैया, क्या हो गया है, क्यों इस तरह रो रही हो, कुछ तो बताओ, अबिया तो ठीक है ना। भाभी के दिल और लहजे में फिक्र ही फिक्र थी, मगर मैं काफी देर तक रोते हुए अपने दिल का गुबार हल्का करती रही थी। काफी देर रो लेने के बाद मैं भाभी से अलग हुई और उनको लेकर कमरे में आ गई, जहां अबिया बिस्तर पर चित लेटी हुई थी। छत को देखती दूर खलाओं में खोई हुई थी। मैं भाभी को लेते सोफे पर बैठ गई और उन्हें सब बता दिया था। मेरी बात सुनने के बाद भाभी ने हैरत से मेरी तरफ देखा था, जैसे उन्हें यकीन ही ना हो। मगर जब मैंने सर हिलाया तो उनके चेहरे पर भी परेशानी की लकीरें फैल गई थीं। वो कहने लगी कि मैं तुम्हें उस वक्त भी कहती थी, सुरैया, कि बच्ची को अकेला ना छोड़ो, इसको अपने साथ रखा करो। ये सब तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ है। तुम्हारी बच्ची की जिंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई है। मैं तो यहाँ किसी और ही काम के लिए। इतना कहकर भाभी चुप हो गई थी। मैंने भाभी से पूछा भी कि क्या बात है। तो भाभी कहने लगी कि कुछ नहीं। वो मुसलसल अबिया को देख रही थी। थोड़ी देर बाद कहने लगी कि मुझे पानी पिला दो। मैं बाहर चली गई। वापस आई तो देखा कि अबिया उठकर बैठी हुई थी और भाभी उसके पास बैठी हुई थी और न जाने उसे क्या कह रही थी। मैंने पानी दिया तो भाभी ने आधा पीकर मुझे वापस कर दिया और कहने लगी कि सुरैया, मुझे जरूरी काम याद आ गया है। मैं शाम को तुम्हारी तरफ आऊंगी, फिर मिलकर इस मसले का हल सोचते हैं। मैं अभी भाभी को रोककर उनसे बातें करना चाहती थी, मगर भाभी चली गई थी। मैं शाम में इंतजार करती रही थी, मगर वो शाम में भी ना आई थी। हाँ, अलबत्ता वो दूसरे रोज सवेरे आ गई थी। मैं और अभिया बा मुश्किल नाश्ता करके फ्री हुई थी। मेरा इरादा बर्तन धोने का था। मैंने सोचा कि यूं ही साथ साथ भाभी से बात करती रहूंगी, जो भी बात हुई। मगर भाभी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि यहाँ आकर बैठो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। भाभी का लहजा संजीदगी से भरा हुआ था और ऐसा तभी होता था कि जब कोई जरूरी या अहम बात हो। मैं भाभी के पास आकर बैठ गई और उनसे इस्तफसार किया कि भाभी, क्या बात है। तो भाभी कहने लगी कि देखो सुरैया, जो बात मैं तुमसे करने जा रही हूँ उसे निहायत इत्मीनान से सुनना। जो कुछ हुआ इसमें अभिया की कोई गलती नहीं है। गलती तो हम बड़ों से ही हुई है। हम ही गफलत बरतते हैं, जिसके बाइस हमें आज ये दिन देखने को मिला। मगर खैर, जो होना था वो हो चुका है, और जो मैं तुम्हें बता रही हूँ वो गौर से सुनना। ना जाने क्या बात थी जो भाभी बार बार तहमीद बांध रही थी। मैंने उन्हें कहा कि भाभी, कहीं क्या बात है। तो भाभी ने जो कुछ मुझे बताया वो सुनकर मैं गुमसुम सी रह गई थी। भाभी कहने लगी कि अबिया का बच्चा नाजायज नहीं है और ना ही किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया है। भाभी की बात सुनकर मैं हैरान होते हुए उनकी तरफ देखा और कहा कि ये आप कैसे कह सकती हैं? आप जानती हैं वो बिन ब्याई माँ बनने वाली है, इसकी औलाद नाजायज ही हुई ना। भाभी कहने लगी कि मुझे माफ कर दो सुरैया, मुझे इल्म नहीं था कि अकबर कोई ऐसा कदम उठा लेगा। मैं नहीं जानती थी। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता तो मैं उसे रोक लेती।
मैं हैरत से भाभी के मुंह की तरफ देख रही थी। ये भाभी क्या कह रही थी? भला ऐसे कैसे हो सकता था? मैंने भाभी से पूछा कि भाभी आप ये क्या कह रही हैं? तो वो कहने लगी कि मैं ठीक कह रही हूँ, यही सच है। दरअसल अकबर अबिया को पसंद करने लगा था। उसे अबिया पहली नजर में ही भाग गई थी। तब उसने अबिया से इस चीज का इजहार किया तो अबिया डर गई। वो तुमसे खौफजदा थी कि न जाने ये बात पता चलने पर वो कैसा रिएक्ट करे। ये बात अबिया ने ही अकबर को बताई है कि शायद तुम उसे मारती पीटती हो। मुझे कल यहाँ अकबर ने ही भेजा था अबिया के रिश्ते के लिए, मगर मैं नहीं जानती थी। जब तुमने मुझे अबिया के साथ हुए हादसे के बारे में बताया तो तभी मेरे जहन में अकबर का नाम आया था। मुझे शक हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें बहाने से बाहर भेजकर अबिया से अकबर के बारे में पूछा तो अबिया ने मेरे शक की तस्दीक कर दी थी। मैंने घर जाकर अकबर को फोन करके बुलाया और मेरे सख्ती से पूछने पर उसने ये बात कबूल कर ली कि वो पहले ही निकाह कर चुके हैं। उस रोज मार्केट से वापसी पर वो अबिया को मस्जिद लेके गया था और वहाँ दोनों ने निकाह कर लिया था। ये उनका जायज बच्चा है, मगर मैं तुमसे माफी मांगती हूँ अपने भाई की तरफ से। मेरे भाई की वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी। खैर अब फैसला तुम्हारा है, तुम क्या फैसला करती हो? क्योंकि अकबर से मैं अच्छी तरह पूछ चुकी हूँ, वो अपने किए पर नादिम है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर वो अबिया से बहुत मोहब्बत करता है और उसे बहुत खुश रखेगा। अभी अभी उसके साथ खुश रहेगी, लेकिन बहरहाल वो तुम्हारी बेटी है। तुम अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला लो। अकबर अबिया को सारी दुनिया के सामने इज्जत से रुखसत करवा कर ले जाना चाहता है। भाभी इतना कहकर चली गई थी, जबकि मैं काफी देर तक अपनी जगह पर थी, हिल भी ना सकी थी। सही कहा था भाभी ने, गलती मेरी ही थी। मेरे प्यार और तवज्जो न देने पर अबिया सारी जिंदगी मोहब्बत को तरसी रही थी। अब जब अकबर ने उससे इजहार किया तो वो उसी की हो गई। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना है, लेकिन भाभी को कोई भी जवाब देने से पहले मैं एक दफा अबिया से उसकी मर्जी जानना चाहती थी। मैं अबिया के पास गई, उसको प्यार से अपने पास बुलाकर पूछा था कि उसकी क्या मर्जी है, क्या वो अकबर के साथ रहना चाहती है या नहीं। अबिया ने अकबर के हक में फैसला दिया था, लेकिन उस दौरान वो बहुत खौफजदा हो गई थी और ये डर मेरा ही था। मैंने मोहब्बत से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया था और उसे कहा कि मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत सी गलतियां हुई। मैं हमेशा तुम्हें कोसती रही और तुम्हें कसूरवार ठहराती रही, जैसे कि ना बोलना तुम्हारी गलती हो। मैं ये बात भूल गई थी कि ये तो खुदाई काम है, इनमें किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं। मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो ज्यादतियां भी की थी, उन सब के लिए मुझे माफ कर दो। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने इतना कहते हुए अभिया से अलग होते उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे, मगर उसने एकदम से मेरे हाथ पकड़ लिए और नफी में सर हिलाने लगी। मैंने आगे होते उसका माथा चूम लिया था। मैंने भाभी को अपने फैसले से आगाह कर दिया था। मैं सब कुछ सादगी से करना चाहती थी, मगर अकबर और भाभी ने कहा कि सब कुछ बहुत धूमधाम से होगा ताकि वो सारे लोग देख सकें और अफसोस कर सकें जिन्होंने मेरे हीरे जैसी अबिया को ठुकराया था। इनका निकाह सबके सामने दोबारा होना था। भाई ने निकाह से पहले मुझे बुलाकर पूछा कि सुरैया तुम खुश तो हो ना, और अबिया से पूछा है क्या उसकी रजामंदी है या फिर तुम ये सिर्फ अपनी भाभी के कहने पर ऐसा कर रही हो। मैंने कहा कि नहीं भाई, भाभी ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो बच्चों की मर्जी है, उस पर ही सब हो रहा है। आप बेफिक्र रहें। मेरी बात सुनकर भाई भी मुतमईन हो गए थे। कुछ ही देर में अबिया रुखसत होकर अकबर के साथ उसके घर चली गई थी। मेरी दोनों बेटियां अपने घरों में खुश और आबाद थीं। अनाबिया के 4 बच्चे थे, 2 बेटियां और 2 बेटे, जबकि अबिया को भी अल्लाह ने एक बेटी और 2 बेटों से नवाजा था जो कि बिल्कुल नॉर्मल थे। अगर किसी बच्चे को अल्लाह ने गूंगा, बहरा या लंगड़ा बनाया है तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है और ना ही उसके माँ बाप की। ये तो अल्लाह की ही मसलियत होती है। हम बजाय बच्चे को कसूरवार ठहराएं या उसको बार बार उसकी कमजोरी बावर करवाने से बेहतर है कि हम उस बच्चे को समझें। उसकी भी ख्वाहिशात होती हैं जैसे दूसरे बच्चों की, वो भी इसी तरह मासूम होते हैं। वालिदैन को ऐसे बच्चों के साथ हमेशा प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए ताकि ऐसे बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने वालिदैन के करीब रहें और उनके दोस्त बने रहें।